Dipali, and I welcome you back to my roundtable series. And today we have all our amazing actors from Gujarati film industry. I would like Ronak to start the introduction and take this ahead. Hi, my name is Ronak Kamdar, and you've seen me recently in movies like Nadi Dosh and Ekvismu Tiffin. Yash. Hi, I'm Yash Soni. Hi, this is Malhar Thakur. Hello, this is Mitra Gadvi. Hello, this is Tatsad Munshi. I am so glad that you guys are here. Now you guys can turn. It's okay. Now that we are talking, we're talking. Yes. Stop it, Mitra. No, this is comfortable. Yeah, so talking about your journeys, talking about Gujarati film industry, talking about your contribution towards it. We have on this table from beginners to debutants to veterans, not really veterans, but then yes, doing their best in the film industry. So really want to understand from each one of you, how is the journey been? Starting from you, Tatsat, you all set to debut. So, યસ મારી જર્ની તો યાર બહુ 2014-2015થી સ્ટાર્ટ થઈ હતી. દેટ આઈ શિફ્ટેડ ટુ બોમ્બે. દેન મેં કોર્સ કર્યો ત્યાં, એક ડિપ્લોમા કોર્સ કર્યો એક્ટિંગનો. દેન આઈ અસિસ્ટેડ ઇન પીકુ પિંક જેવી ફિલ્મોમાં મેં અસિસ્ટ કર્યું, અને પછી આઈ કેમ બેક ટુ અહેમદાબાદ, કારણ કે મારે બોમ્બે નહોતું જ રહેવું. આઈ વોઝ વેરી ક્લિયર. પછી મેં થિયેટર્સ કર્યા, શોર્ટ ફિલ્મ્સ કરી, અને ધીરે ધીરે ફાઇનલી ઇન 2019 આઈ ગોટ માય ફર્સ્ટ ફિલ્મ, જે હવે રિલીઝ થશે ઇન નવેમ્બર. સો આઈ બીન પ્રિટી લકી અને લુકિંગ ફોરવર્ડ કે હવે આગળ જઈને બધું સરસ થાય. ઓલ ધ બેસ્ટ. યા ઇટ હેઝ બીન અ ગ્રેટ જર્ની. અત્યાર સુધી બહુ મજા પડી, કારણ કે વી ઓલ સ્ટાર્ટેડ ટુગેધર ઇન અ વે. અને અમે પહેલેથી ઓળખીએ છીએ, અમે લોકો ફ્રેન્ડ્સ હતા. બટ આ વર્ષોમાં બહુ ધમાલ કરવા મળી, બહુ મજા પડી. અને કામ સાથે સાથે એવું થયું છે કે આ બધા ફ્રેન્ડ્સ બી એવા જ બન્યા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, જે ઇન્ડસ્ટ્રી ફ્રેન્ડ્સ કરતાં રિયલ લાઈફ ફ્રેન્ડ્સ છે. અને કામ વાઇઝ ઓફકોર્સ ચેલેન્જીસ પણ આવ્યા. એક એવું બી થયું કે ઘણીવાર એવું થાય કે બિકોઝ ઓફ છેલ્લો દિવસ અમારી એક ઇમેજ બની, અને પછી એ જ ઇમેજમાં રોલ ઓફર થતા રહ્યા. પણ એ બી કર્યું થોડી વાર, અને હવે એવી કોશિશ છે આગળ આવનારી ફિલ્મોમાં, અને હમણાં પણ કેમ છો લંડન, અને જે હવે નેક્સ્ટ રિલીઝ છે કે એમાં લોકો કંઈક અલગ જોવે. તો એ સ્ટ્રગલ છે થોડી, બાકી મજા છે. એટલે નાટકો કરતાં ત્યારે નહોતી ખબર કે ફિલ્મોનું આ રીતનું આગળ જર્ની હશે. પણ જર્ની ઓફકોર્સ મેમોરેબલ હોય છે. કોઈ પણ નાટકની જર્ની પણ એટલી મેમોરેબલ રહી છે, અને ફિલ્મોની પણ, કારણ કે હું કોન્સ્ટન્ટલી કામ કરી રહ્યો હતો. એવરેજ 4 ફિલ્મ્સ અ યર અત્યારે કરી રહ્યો છું. એટલે મને એનો આનંદ છે કે લોકો સ્વીકારે છે. વચ્ચે ડિફિકલ્ટ ફિલ્મો બી આવી જાય છે જે કદાચ નથી ચાલતી કે એવું બધું. પણ એ તો મને એવું છે કે એવું બી આવવું જોઈએ, તો તમને એક સ્ટેજ ખબર પડે. ઇફ અને બટની વચ્ચેની જે દુનિયા છે એ બહુ આમ નાની ને નાજુક છે, જે એકચ્યુઅલી એક્ટર સિવાય કોઈને ખબર નથી હોતી. તો આઈ એમ વેરી લકી ઇન અ વે કે મને હિટ્સ પણ મળી છે, રેકોર્ડ્સ બી મળ્યા છે, બોક્સ ઓફિસ પણ મળ્યું છે, પ્રોડક્શન હાઉસ બી થયું છે. એટલે બહુ જર્ની બહુ મિક્સ ઓફ ઇમોશન્સ છે. એટલે મને બહુ આનંદ છે કે હું આ દુનિયાનો પાર્ટ છું એમ. મસ્ત. શરૂઆત થઈ પછી એટલે હવે શું કહું એ સમજાતું નથી, પણ શરૂઆત થઈ અને નાટક વખતે જેમ વાત થઈ કે એવું નહોતું વિચાર્યું કે ફિલ્મ્સ માટે આ બધું કરી રહ્યા છીએ. તો બાળ કલાકારથી એકચ્યુઅલી શરૂઆત થઈ હતી, અને પછી પહેલી ફિલ્મ છેલ્લો દિવસ થઈ, અને પછી લકી ફીલ થાય કે આમ અત્યાર સુધી બધી સારી રહી છે ફિલ્મ્સ, લોકોને બધી ફિલ્મ લોકોએ સ્વીકારી છે. તો મજા આવે છે. આમ કંઈક નવું શોધી રહ્યો છું, બીજું કંઈક કે જે થયું એના કરતાં કંઈક અલગ. એ જ શોધ પહેલેથી એકચ્યુઅલી ચાલુ છે. સો યસ. બસ જેમ બધાએ કહ્યું એ કે આઈ થિંક આપણે બધાએ જ થિયેટરથી શરૂઆત કરી હતી. બિકોઝ લાઈક એવરીવન સેડ કે ફિલ્મ્સ, ગુજરાતી ફિલ્મ્સમાં કામ કરવાનો ચાન્સ મળશે, કે આવી ઇન્ડસ્ટ્રી ઊભી થશે, એ કોઈને આઈડિયા જ નહોતો. સો ઇટ્સ એટલે દેર વોઝ નેવર અ ગોલ ઓરિએન્ટેડ જર્ની, કે ભાઈ આપણે ફિલ્મ્સમાં કરવું છે. વી ઓલ આઈ થિંક સ્ટાર્ટેડ આઉટ ફોર અવર લવ ઓફ એક્ટિંગ, કે ભાઈ અમને કલાકાર તરીકે જે સ્ટેજ પર મજા આવતી હતી એના માટે જ અમે લોકો કામ કરતા હતા. અને આઈ થિંક ઘણા બધા લોકોએ એના સિવાય પણ બીજું બધું લાઈફમાં કર્યું છે. લાઈક માય પ્રોફેશનલ જર્ની વોઝ લાઈક આઈ એમ એન આર્કિટેક્ટ. તો મારું એ ચાલતું હતું, સાથે સાથે હું થિયેટર કરતો હતો. સો મારો શિફ્ટ બહુ મોડો થયો લાઈફમાં ટુવર્ડ્સ ધીસ પરમનન્ટ પ્રોફેશન. સો જસ્ટ આઈ થિંક 2015 આસપાસ જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રી આમ સ્ટેબલાઇઝ થોડીક થઈ શરૂઆત થઈને, ત્યારથી જ અમે લોકો બધા કામ કરીએ છીએ. And we've been lucky enough that I've pretty much worked with everyone on the table. Like everyone has worked with everyone on the table. So we've known each other since such a long time. And so yeah, it's been a very fun journey.
બટ એ રાઇટલી સેડ કારણ કે આઈ રિમેમ્બર ટોકિંગ ટુ મલ્હાર સો મલ્હારનું પ્લે હતું બરોડામાં એન્ડ દેટ ઇઝ વેર વી મેટ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ અને હું બેકસ્ટેજ ગયો હતો મળવા માટે એને કે બહુ મસ્ત નાટક છે ને એવી રીતે વાત અને ત્યારે મેં કીધું કે હું મુંબઈ આવવાનો છું તો આઈ કોલ યુ તો ત્યારે તો કોઈ એવી વાત જ નથી કે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી બનશે કે ફિલ્મો થશે ફિલ્મોની વાત બી નથી કરતા અમે એટલે ત્યારે બી નાટકોની જ વાત કરતા અને આઈ થિંક હી વોઝ ધ ફર્સ્ટ વન એકચ્યુઅલી મુંબઈ હું મારા ફ્રેન્ડ જોડે રહેવા ગયો અને ફર્સ્ટ ગાય આઈ એવર કોલ્ડ વોઝ મલ્હાર અને અમે લોકોએ પહેલું પ્લે એણે હી એકચ્યુઅલી ટુક મી ટુ ધ પ્લે કે ચાલ આ એક પ્લે ચાલુ થાય છે મારું તું આવી જા અને આપણે સરને વાત કરી લઈએ So good, yeah, so good. So हम जब गुजराती फिल्म्स के बारे में बात करते हैं, of course हम में से किसी को पता नहीं था that we'll be coming up with something, you know, we'll be making something or you guys will be contributing in such a manner कि सब कुछ, you know, मतलब you guys will be the front runners कि चलो, you know, we are the ones. तो वो जब स्टार्ट हुआ तब वो फीलिंग क्या था दैट यू नो कि गुजराती फिल्म में काम करना है या हम लोगों ने एक गुजराती फिल्म का एरा देखा था एक टाइम पहले सो वहाँ से देन नाउ वी आर कमिंग हियर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गुजराती फिल्म्स एंड एट दैट टाइम you know we were offered films like you know scripts कि पहला इनको मिला so you know it was all together so वो क्या feeling था when the first film was happening कि यार wow It's a proud feeling. I mean, when I think first film I saw was Kivita Jaish. correct So I felt very proud. Okay, you know, in our language, I'm Yes. watching the film in theater and people are there, people are cheering. yes So after that, so many Bayar alongside Raju, but and we grown in as an industry. तो वो बहुत प्राउड फील थी और अब तो थिंग्स हैव चेंज्ड बॉम्बे से लोग शायद they want to work in regional films, be it Marathi, be it Yes. Bengali or be it Gujarati. yes So it's I think now it's a golden period of regional cinema and let's hope के सब एंड अच्छा एवरीबॉडी वांट्स टू प्रूव देयर बेस्ट Yeah. जो भी काम करना चाहता है वैसा लगता है कि यार नहीं आज आ फिल्म करी रही है आज आ सब्जेक्ट चूज करी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वो धीरे धीरे खुलती है पर अब टाइम आ चुका है अभी एंड वी डिडंट नो एट द टाइम ऑफ वर्किंग इन द गुजराती फिल्म्स वी आर सेटिंग अप एन एरा वो हमको नहीं पता था हम जस्ट काम कर रहे थे जैसे प्ले करते थे वैसे थिएटर जैसे फिल्म करी तो हमको पता नहीं होता है कि हम एरा सेट करने वाले हैं वो 4-5 साल के बाद ऑडियंस ही बोलती है कि यार यू चेंज हम लोगों ने कभी देखा नहीं था ऐसी गुजराती फिल्म तो दैट्स दी थिंग जो हम लकी है उस बारे में हाँ कि- मतलब वही ना किसी भी मूवमेंट में अगर आप उसका हिस्सा होते हो तो आपको नहीं पता होता कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है correct yes वो बाहर से लाइक ही सेड ना 4-5 साल बाद पता चलता है कि अरे यार और मुझे याद है आप जहाँ लोगों तक हम लोग चलो जो शूट कर रहे थे तब तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना कुछ यानी स्क्रिप्ट ये है इसको ऐसा शूट होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं सोचा था like actually you guys were caught raw कि यही है जो है हाँ आई मीन ऑडिशन you हुआ guys और were फिर not even acting ऐसा था बट नो ऑफ कोर्स वी टुक द जॉब वेरी सीरियसली टू बी वेरी बिकॉज केडी भाई सो हमारे वर्कशॉप्स बहुत लंबे आई थिंक 25 डेज हमारे वर्कशॉप्स चले थे तो वी टुक द जॉब वेरी सीरियसली बट इट वाज ऑल फन एंड गेम्स बिकॉज तब हमें ये इसका सीरियसनेस नहीं पता था कि एक अच्छी फिल्म बनेगी तो उसका कितना बड़ा रिजल्ट आ सकता है तो हम लोग सेट पे मजे करते थे लेकिन ऑफ कोर्स सब प्रिपेयर्ड थे सबकी लाइंस सबको पूरी फिल्म सबको याद थी पूरी स्क्रिप्ट ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुझे मेरी लाइंस याद है सबको पूरी स्क्रिप्ट याद थी सीन्स प्रॉपरली हम लोगों ने सेट किए हुए थे पर अगेन तब नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हो जाए when we went for the promotions तो काफ़ी सारी जगह पे ऐसा हुआ है कि किसी ने सुना भी नहीं हो कि हेलो छेलो दिवस आवेश ऐसा किसी का ध्यान नहीं है वैसी जगह पे भी प्रमोशन किए नाउ द टाइम हैज चेंज ऑफ कोर्स पीपल वांट अस टू प्रमोट द फिल्म इन देयर कॉलेज और फेस्टिवल्स और सो वो जर्नी है तो मज़ेदार बात है यार you've been quiet What do you want me to say? no I don't want you to say I want you to say on your this thing what was your first reaction when you were getting your first film or whatever how was the feeling मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली कि जिस टाइम पे मुझे फिल्म मिली तब मैं फिल्म में काम करूँगा तब मैं 17 साल का था और कॉलेज का फर्स्ट ईयर शुरुआत हुई थी और तब प्लेस चल रहे थे थिएटर कर रहा था मैं तो वही दिमाग में था कि लाइफ में कभी होंगी फिल्म्स पर अभी सोचा नहीं था तो उस टाइम पे अचानक से फिल्म हो गई एक्चुअली छेलो दिवस से पहले भी एक फ़िल्म ऑफ़र हुई थी बट तब फिर से वही था कि स्क्रिप्ट में उतना मज़ा नहीं आया था डायरेक्टर पे वो था बट ऑफ कोर्स वो फर्स्ट फिल्म थी तो आजू बाजू के लोग भी वो बोल रहे थे कि यार स्क्रीन पे दिखेगा तो ये वो बट तब वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई तब वही था कि यार ये स्क्रिप्ट पे कहीं पे भी दिखूँ मैं मुझे नहीं दिखना है इसमें तो फिर छेलो दिवस हैपेंड और तो ये तब वो सोचा नहीं था और जब हो गया तो आज एक्चुअली जब सबने बोला कि 4-5 साल बाद लोग बोलते हैं तब रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक्चुअली कितनी बड़ी बात थी और जिसमें हम उसका हिस्सा थे
तो वो हमारे लिए भी, मेरे लिए तो ऑफकोर्स बहुत बड़ी बात है। नाइस। सो अभी हम बात कर रहे हैं इसी बारे में, तो आई वांट टू नो, अभी स्कोप की बात तो मैं बाद में करूँगी, पहले मुझे ये जानना है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट राइट नाउ, नाउ दैट यू गाइज आर वर्किंग, यू गाइज फुल्ली इनटू इट। सो बहुत सारी चीज़ें हम एज एन आउटसाइडर देखते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, बिकॉज वी वर्कड एट वेरियस प्लेसेस, वी वर्कड इन टीवी, वी वर्कड इन फिल्म्स, डिफरेंट फिल्म्स, अलग एक्सपोजर है। सो व्हेन यू कम बैक, सो व्हाट डू यू वांट द इंडस्ट्री टू वर्क ऑन राइट नाउ? स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो आई थिंक इट विल Yeah, स्टे देयर, 5 years डाउन द yes, लाइन yes, तो वो तो yes, रहेगा, yes. बट what I feel currently the progress is there, you know what 5 years back जो था उससे तो बहुत ज़्यादा progress हुआ, improvement हुआ है, Yes. but still if we'll talk about it, there are few things which we feel के यार marketing में थोड़ा improvement Correct. हो जाए, Coming to ये that, थोड़ा हो yeah. जाए, थोड़े shooting के days बढ़ जाए, budget थोड़ा खुल जाए, but उस सबके कौन होते हैं, budget नहीं खुल रहा है क्योंकि box office अभी we have not reached 100 crore, 200 crore, whatever milestone. Yeah. So all have their own cons, but that's about it. But I think it's in a positive track. या मार्केटिंग इज द थिंग। लोगों को जो लगता ही है कि यार ज़्यादा प्रमोट हुई होती तो अच्छा होता, ज़्यादातर लोगों तक पहुंची होती तो अच्छा होता, पेपर एड बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं, बहुत सारी चीज़ें। इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग पीपल आर एक्सप्लोरिंग देयर अपॉर्चुनिटीज़, कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कुछ मार्केटिंग में करते हैं, ये कुछ नया करते हैं। हालांकि उसका असर होता है पर इतना भी नहीं होता है जैसा हम सोच रहे हैं। पर या मार्केटिंग की बात करें तो लगता है ऐसा कि यार वो जगह पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सेकेंडली आई फील कभी कभी वो जो एक नहीं होता है कि यार ऐसा ही चलेगा वाला एक एटीट्यूड है, वो कभी कभी नहीं वर्क होता है यार। पूरा पैटर्न एक चेंज होना चाहिए। एंड अगर लॉकडाउन को बुरा माने तो बुरा ही है, पर अच्छा मानो तो इंडस्ट्री के लिए स्कोप ऑफ सब्जेक्ट्स है कि लोगों को अभी ऐसी हैबिट हो गई है कि लोग कुछ नया देखने के लिए तैयार है। इफ यू प्रूव, इफ राडो एज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, लोगों ने देखी, बहुत तारीफ करी उसकी, तो वो सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे खुलती जाएगी। और एवरी डे इट्स अ न्यू टास्क कि आज क्या करेंगे नया, बिकॉज 5 साल से ग्रो हो रहा है और हम ऐसे लेवल पे आ गए कि अभी नया क्या दे, सब्जेक्ट में दे या मार्केटिंग में दे या सॉन्ग्स में दे या म्यूजिक डायरेक्टर में दे, क्या दे। सो इट्स एवरी डे न्यू टास्क, बट या एवरीवन इज एक्सप्लोरिंग देयर अपॉर्चुनिटीज, सो इट्स फन टू एक्सप्लोर। यार आई फील, देखो आप किसी भी और रीजनल इंडस्ट्री को ले लें अगर एज एन एग्जांपल, तो चाहे मराठी हो, चाहे साउथ हो, चाहे बंगाली हो, वो सब लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं तब जाके वो यहाँ पहुँचे हैं। हम 5 साल से कर रहे हैं और 5 साल में हमने जो प्रोग्रेस किया है वो मुझे नहीं लगता किसी भी रीजनल इंडस्ट्री ने इतना रैपिड प्रोग्रेस किया होगा। आई थिंक एज गुजरातीज हमारा जो अडेप्टिव नेचर है कि हम दूसरों के उसमें से सीखते बहुत जल्दी हैं कि यू नो वो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो हम वी आर ओपन टू एक्सपेरिमेंट, वी आर ओपन टू टेक रिस्क्स बिकॉज वी आर दैट, आवर कम्युनिटी इज अ रिस्क टेकिंग बिजनेस कम्युनिटी। तो आई फील, मेरा तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि 5 साल में हमने कितना ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। Who would have thought कि 5 years back? एक मतलब एक स्टार्टअप से लेके एक मल्टीनेशनल तक का जर्नी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो। Yes. That we have, and in 5 years it's insane. I feel कि बहुत ज़्यादा And now I think we are actually focused on content. Finally, I can say that because कंटेंट एंड डायरेक्टर्स over That's the where I was years, coming to. over the years ऐसा था कि पहले यानी वो ऐसा बोला जाता है कि हर एक इंडस्ट्री का एक वॉमिटिंग फेज आता है आफ्टर अ सक्सेस, कि जहाँ पे बाकी सब चीज़ें निकल जाती है और फिर से आप वहाँ पे जाके शुरू करते हो। तो मुझे लग रहा है वो फेज आ गया। ऑल्सो व्हाट मल्हार मेंशन कि पैंडेमिक में टाइम मिला नया सोचने का, नया लिखने का, नए सब्जेक्ट्स और नए लोग आए। अभी जैसे इनकी भी फिल्म आ रही है तो उनमें भी नए डायरेक्टर्स, नए राइटर्स आ रहे हैं और बहुत सारे नए राइटर्स हमें अप्रोच करते हैं कि यार हमने ये सब्जेक्ट लिखा है, आप प्लीज़ एक बार आइडिया देख लो या फिर आप करो, आपको जो करना है। तो मुझे लग रहा है कि अब फाइनली हम ऐसी फिल्मों पे काम करना शुरू कर रहे हैं जहाँ पे कंटेंट इज़ द किंग वाली जो बात है, हम वहीं पे फोकस कर रहे हैं। तो अब जो फिल्में रिलीज़ होगी वो सारी कंटेंट ड्रिवन फिल्में होंगी। और क्योंकि पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ कि हमारे पेरेंट्स भी है ना, उनको पता चला कि अच्छा दुनिया में इतना कुछ बनता है। यानी जो लोग सिर्फ शायद गुजराती फिल्में देखते थे या हिंदी फिल्में देखते थे, उन्होंने स्पेनिश फिल्म देख ली, उन्होंने कुछ और देख लिया। तो अब क्या है कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है कि हम उनको बहुत छोटी सी चीज़ें नहीं दे सकते, नॉट इन टर्म्स ऑफ बजट बट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। एंगेजिंग नहीं है तो खत्म हो तुम, तो वो सबको पता है। तो अब सिलेक्शन हो या राइटिंग हो, हर जगह पे वो दिखने लगा है। और अब तो पिछले 1 साल से जो आफ्टर द पैंडेमिक जो मतलब मेन स्ट्रीम का जो रिजल्ट है
वो क्लियर है कि अगर कंटेंट नहीं है तो आप कोई भी हो, नहीं चलने वाला. Like we've And seen smaller such a films are also working like Kantara or something. yeah. And secondly, people are very open to saying कि यार mainstream नहीं देखेंगे, regional देखेंगे. यहाँ पे हमको मजा आ रहा है तो ये देखेंगे. Theaters ओनर्स के, एग्जिबिटर्स के एटीट्यूड में भी हमने डिफरेंस देखा है कि यार दे आर नाउ कंटेंट ओरिएंटेड कि भाई गुजराती चलेगी तो वो चलाएंगे, बंगाली चलेगी तो बंगाली भी चलाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हिंदी फिल्म आ रही है तो रीजनल फिल्म दब जाएगी, जो पैंडेमिक के पहले होता था. कितनी भी अच्छे से चल रही होगी फिल्म ना, तो कोई बड़ी फिल्म आएगी तो वो ऑटोमेटिकली दब जाती थी. बट दैट इज ओनली बिकॉज कि अब लोग भी जाने लगे. पहले गुजरात में भी ऐसा हुआ कि अब लोग सोच रहे हैं कि हाँ चलो गुजराती फिल्म આવી છે તો જઈને જોઈએ એક વાર. એટલે પહેલા ઓપોર્ચ્યુનિટી, પહેલા કેવું હતું કે રિવ્યુની રાહ જોવાતી હતી, 2 વીક પછી આપણી ફિલ્મો ચાલતી थी. बट अब ऐसा है कि गुजराती फिल्म है तो उसको प्रायोरिटी देने लगे पुश लोग. मिल जाता है फ्रॉम हाँ, क्योंकि लोग हमें मिलते तभी बोलते हैं कि यार पहले गुजराती फिल्म बाकी सब बाद में, ऐसा बोलने वाले लोग मिल रहे हैं. You're a part of this. You're not Of course I am. No. You should ask him the first. So हाँ, उसको पहले उसको बेचारे को लास्ट I'll do that. I'll do that so that Yash, Malhar. So I think I'll start from here then. Okay. So when, anyways, I had to. The next question was first from them. When we talk about content, we're right now talking. हम scripts की बात करते हैं. I want to ask the two of you. आप लोग scripts कैसे पसंद करते हैं? Like how do you choose and how do you choose कि मुझे इस साल इतने पे काम करना है, इतने पे काम नहीं करना है? Starting to review, whichever. तू बोल यार, हमारे सांभळू છે. मैं पर्सनली बस यही देखता हूँ कि मुझे फर्स्ट नरेशन हो या फर्स्ट टाइम जब मैं स्टोरी सुन रहा हूँ, एक्चुअली पूरी स्टोरी में ना मैं थोड़ा मतलब इधर उधर निकल जाता हूँ कि स्टोरी सुनी हो ऐसी हो और फिर एग्जीक्यूशन हुआ हो या फिर स्क्रिप्ट सुनी हो एटलीस्ट, तो उसमें फिर बात बदल गई हो, ऐसे भी बहुत बार हुआ है. पर पहली इम्पैक्ट जो होती है स्क्रिप्ट की, वो ही उसी पे मैं डिसीजन लेता हूँ. अगर मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे वो समझ नहीं है कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो वो उस तरफ मैं नहीं सोचता हूँ. मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे मेरे कैरेक्टर में कुछ नया करने को मिल रहा है, तो वो मैं कर रहा हूँ. जैसे कि ऐसा भी बहुत हुआ है कि अच्छी स्क्रिप्ट थी लेकिन चालजीविली के बाद मुझे 4 कैंसर वाली स्क्रिप्ट ऑफर हुई, फिर नाड़ी दोष के बाद बहुत सारी लव स्टोरीज ऑफर हुई. तो वो ऐसा था कि यार एटलीस्ट अभी ये नहीं करना है, ये ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, कुछ मेरे खुद के लिए भी मुझे बदलाव चाहिए एक कैरेक्टर के लिए खास. तो बट मैं लकी रहा हूँ कि अच्छे कैरेक्टर्स, राडो, फिर मिसिंग करके एक वेब सीरीज़ आ रही है अभिषेक सर की, तो वो सब काफ़ी एक्सपेरिमेंटल थे प्रोजेक्ट्स और उसमें काम करने को मिला, तो वो है. और मैं सवाल भूल गया. हाउ डू आई चूज द स्क्रिप्ट. और हाँ, मैं वो नहीं सोचता हूँ कि इस साल मैं इतनी फिल्म्स करूँगा. जैसे कि छेलो दिवस के बाद मेरी 5 या 7 साल में 3 फिल्म्स आई है गुजराती, और पिछले साल मेरी एक साथ 3 फिल्म आई है. तो वो मेरे दिमाग में नहीं होता है कि मैं इस साल पे इतनी फिल्म करूँगा या अगले साल पे इस तरह से काम करूँगा. वो कुछ प्लानिंग अभी तक तो मैंने किया नहीं है कभी. Okay. Thank you. स्क्रिप्ट Your question mark, your full stop comes like this. When I think it's a comma, it's a full stop. Yes. या स्क्रिप्ट चूज करने में 2-4 चीज़ें, कैरेक्टर होता है, कनेक्टिविटी होता है, दूसरा लगता है कि एक बार फुल नरेशन सुनो कैसा लगता है. आफ्टर ऑल आई रीड द स्क्रिप्ट, आई चूज द स्क्रिप्ट. फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी कि वो एग्जीक्यूशन में जब तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी हो उससे अपोजिट एग्जीक्यूशन होता है, तो तुमको लगता है कि नहीं यार, तो मेरी तो शायद मिस्टेक नहीं होगी पर बनाने में मिस्टेक की होगी. तो मतलब लास्ट फिल्म वीरिशानो सीमन, व्हेन आई रेड द फिल्म, आई सॉ द फिल्म, वो दोनों में बहुत डिफरेंस था. देखने बाद ऐसा लगा कि यार ठीक है, नहीं करी होती तो अच्छा होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो था नहीं फिल्म में. ठीक है, पैसा वैसा आ गया पर अलग बात है. पर પહેલા અટક્યો તો જ્યારથી એને ચાલુ કર્યું ત્યારથી નહોતો હસ્યો. ऑनेस्ट ओजी. વેરી સુપર ઓનેસ્ટ. And he's like अक्षय कुमार, मैं यहाँ आया हूँ पैसे कमाऊंगा. अच्छा यार वो उसी का मुंडन, उसके बिना तो कैसे ही चलेगा. पर वो तो पैसे यार नहीं, बहुत जरूरी है यार. हम लोगों ने देखा नहीं है पैसा भाई. जब थिएटर करते हैं तब हम लोग को पैसे सेव करके कॉफी पीना पड़ता था. वो ना सबके लिए पॉइंट है कि थिएटर के कवर Yes. जब I am देखते going to थे come to that एट द question. एंड ऑफ द डे. लाइक जब मैंने प्ले लास्ट किया था तब मेरा पेमेंट था 1100 पर डे. अभी कुछ नहीं है यार 1100 पर डे. तुम क्या करोगे, कैसे बॉम्बे में सर्वाइव करोगे, ये वो 1100 पर डे. 1100 पर शो. हाँ, बहुत बड़ा है पर शो. मतलब वो शो ऐसा नहीं 15 नहीं चलता है ना यार. वो तो ठीक है ना, 8-10 शो चल गए तो 10-15. भाई
हाँ मुंबई नहीं માટે 2 મહિના રિહર્સલ हाँ 300-400 का कवर था नहीं, वो भी था 4 शो होता वो भी था 500-600 रुपए में कवर भी आप था। मानो मैंने आज जितने भी मैंने प्लेस किए मैं 2001 से लेके 2014 तक मैं प्लेस कर रहा था, मैंने आज तक एक भी प्ले का कवर नहीं लिया है। तुम बड़े घर से हो भाई, हमको कवर चाहिए। मैं रीजन बताता हूँ। एक्सपेरिमेंटल हाँ कवर हाँ, क्योंकि मैंने कमर्शियल किया ही नहीं कभी, मैं एक भी कमर्शियल प्ले पर नहीं हम तो ऐसा बोलते थे मैंने कमर्शियल जितने नॉन प्ले किए वो कमर्शियल। चले नहीं, तो मेरे आफ्टर ऑल तो वही है मतलब कि हाँ એટલે 2 મહિના રિહર્સલ અને 12 શો 15 શો બંધ થઈ જાય। भाई मेरा तो 3 साल पहले तक भी पॉकेट मनी पे चल रहा था ना, क्योंकि धंधा छोड़ दिया। Oh God. करेक्ट पर वही एक्चुअली थिएटर में पैसों से ज्यादा जो हमने गेन किया है ना, वो चीज एक्चुअली हमें लाइफ टाइम ये वो बेस बहुत अच्छा। तो उसमें ऑफ कोर्स अभी तो मस्ती मजाक में सब कवर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी Cover के was लिए never a मैटर नहीं concern. कर रहा था। एग्जैक्टली वो सोचते भी नहीं थे हम। 300 रुपए भी ऐसा थे कि हाँ बहुत यानी वो ठीक है। 300 आके तो तुरंत ही उड़ जाते थे, उसका कुछ करना नहीं होता। See, ये हम सबके ना पैशन का टेस्ट था वो। हाँ कि कब तक टिकते हो तुम, और वो अब हमको बहुत काम आ रहा है, बिकॉज नन ऑफ अस नाउ शाई फ्रॉम वर्किंग हार्ड। we've all slogged यार, I mean I'm sure, of course. बहुत काम वैसे मजदूरी की लिटरली। और फिल्म एक बार अच्छी लग जाए तो यानी हम सबने चेयर साफ की तुम होगी, लोग ने सेट्स नहीं खड़े किए ना? सेट्स खड़े किए होंगे, चेयर साफ अगर की बाहर का शो है तो सामान भी उठाना है, स्टेज भी साफ करना है, चाय भी भरी है, लाइट्स भी लगाई है, सब पेटी वेटी लाइक हम लोग का मेरे को याद है, मैं कॉलेज में था, हमारा थिएटर ग्रुप था जो, तो वो कॉलेज जितना ही फंड मिलता था हमको, एक प्ले 20,000 रुपए मिल जाते थे कि भाई एक नाटक पूरा आप खड़ा कर दो। तो हम लोग एक्चुअली जंकयार्ड जाके चीजें उठा के उनको पेंट वेंट करके सेट बनाते थे, कपड़े डाई करके सी के कॉस्ट्यूम्स बनाते थे। Wow. और इसीलिए फिर हम लोग पैंट शर्ट वाले प्लेस कर ही नहीं पाते थे, हम लोग को एक्सपेरिमेंटल करना ही पड़ता था, क्योंकि मैक्सिमम अब मैं क्या एक गाउन सी सकता हूँ। કંતાન પહેન કે હા કંતાન બહુ પહેર્યું હતું मैं वो पहली तो 20,000 કોલેજમાંથી કઈ કોલેજમાં હતો તું? मतलब मैं બધું આવી ગયું। 20,000 શોઝ એટલે મારી કોલેજમાં તો મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ એવો છે કે મેં જાતે નાટક કર્યું હોય હા, પોતાના અને બી ખર્ચે. થવા ના દીધું હોય। રિહર્સલ કરીએ પછી પ્રિન્સિપલ કે એચઓડી કે કેમ નાટક કરો છો, યુથ फेस्टिवल કરવું છે। नहीं, हमारी कॉलेज में तो यूथ फेस्टिवल का हिस्सा था कि एक दिन प्ले होगा जो हाँ नहीं वो तो हमारे में भी हाँ लेकिन- यूनिवर्सिटी पूरा आफ्टर ऑल આપણે જે બી ફિલ્મ કરીએ ને ત્યારે બી છેલ્લે તો એમ થાય છે કે ભાઈ કેટલા આપવાના છો તમે, ચલો પિક્ચર બની સરસ બધું અદ્ભુત છે, તમે એટલા માઇન્ડ બ્લોઈંગ મેકર બધું બરાબર, પણ કેટલા આપશો એમ એવું તો થઈ જ જાય છે। અને બહુ જેન્યુન થાય છે કે ભાઈ यार हमें इफ वी आर गिविंग यू 40 डेज तो हमको उसके सामने क्या दे रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बहुत अभी भी कैसा है मैं आपको बताता हूँ कि हमको पैसा सिर्फ शूटिंग का मिलता है, यस किसी को पैसा प्रमोशन का अलग से नहीं मिलता, अपीयरेंसेस का नहीं मिलता। हम मेरा तो खैर मेरा और तत्सत का तो इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है, बट इन तीनों का 100% हुआ होगा, जहाँ प्रमोशन के नाम पे इनको दुकानों में ले जाया, दुकानों में खाना खाने रेस्टोरेंट्स में, और वो ना 15 दिन चलता है, तो कुछ कुछ लोगों का तो पूरा डील होता है कि इधर खाना खाने आएंगे। फिर एक टाइम के बाद हम लोगों को पता चल जाता था कि यार तुम सिर्फ हमको खाना खाने नहीं लेके जा रहे हो, तुमने वहाँ पे डील की होगी। तो फिर हम भी बात कर लेते कि नहीं खाना इधर, क्या करेंगे। तो वो एक्सप्लॉयटेशन भी बिकॉज सी सबका जर्नी अलग रहा है। इन लोगों का कैसा था कि फर्स्ट फिल्म क्लिक डिड लाइक इनसेन, आज तक इट इज अलाइव, राइट? ही स्टार्टेड ऑफ बट ही डिड सो मच, इन्हें असिस्ट किया, इसने ये किया वो किया। माई जर्नी हैज बीन वेरी डिफरेंट बिकॉज आई स्टार्टेड एट द सेम टाइम, बट मेरा काम बाहर आते आते 2022 हो गया। यू नो, 21 टिफिन वाज आई वुड से द टर्निंग पॉइंट इन माय करियर इन दैट सेंस। तो मेरे साथ तो अभी भी वो होता है ना कि आप कोई नई स्क्रिप्ट लेके आता है, उनको ऐसा है कि नहीं आप फर्स्ट चॉइस हो, आपको ही कास्ट करना है, तो पूरी फिल्म सुना देंगे ये वो। मैं बोलूँगा ठीक है अच्छा लग रहा है, आप बताओ आगे। तो बोले कि आपका बजट 2-3 लाख ही है। बोला क्यों? तो बोलेंगे यार नहीं, आपके अभी आप तक आपने सपोर्टिंग रोल्स किए हैं ना, तो एज ए लीड आपका रिकवरी वायबल है कि नहीं वो हमें नहीं पता है। तो वो अभी भी होता है। So you have to say, you have to put your foot down and say कि नहीं करना है भाई। और बात करने का एक इशू तो हमारे यहाँ है ही, बात करने का जो ढंग है आर्टिस्ट के साथ, वो सब्जी मार्केट वाला कभी कभार हो जाता है। यानी नेगोशिएशंस में एक स्पेस होना चाहिए ना, आप कैसे नेगोशिएट करें। नहीं उनका, क्योंकि देखो क्या है, प्रोड्यूसर तो बात करते नहीं है, उनके अंडर किसी कोई एक लेता है स्टैंड के मैं आपको करवा के दूंगा, ऐसे आता है वो। और जब वो कॉल करता है ना, हमें होता है मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, मैं क्यों तेरे साथ, और हु आर यू टू टेल मी व्हाट आई शुड कोट, ऐसा। तो वो सबसे बड़ा लफड़ा तो है ही हमारे यहाँ कि या तो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली बात कर लेता हूँ मैं, व्हाट रौनक इज सेइंग, ऐसा आप कैसे बोल सकते हो किसी को कि तुम्हारे लिए हमारा बजट ये है, वरना ये कैरेक्टर का बजट बड़ा है,
हाँ नहीं, अभी रिसेंटली एक फिल्म ऑफर हुई थी जिसमें कोट मांगा, मैंने कोट दिया, तो उन्होंने मुझे एक्चुअली ये बोला कि ऐसा नहीं कि हमारे पास वो बजट नहीं है, लेकिन वो आपको नहीं दे सकते। हाँ, ये भी हुआ है, ये भी बोल देते हैं लोग, बट द पॉइंट इज ठीक है, नहीं दे सकते, ओके आई अंडरस्टैंड, आप प्रोड्यूसर हो, आपको 2.5 करोड़ का रिस्क आप ले रहे हो, आई अंडरस्टैंड दैट, पर एक वो जैसे ही सही ना, एक ढंग होता है ना, आप बोलो ना नहीं जमेगा, यू कैन क्लोज इट ऑफ, बट वो अभी पर वो भी मुंह पे बोलेंगे तुम्हें नहीं देंगे, हाँ। हमारे पास है वो। वी हैव द मनी, या तो यार वो इतने में शायद तो ये मिल गलत जाता है। गलत इंसान बात कर रहा है। एक कोई भी सेंसिबल इंसान ऐसे बात नहीं करेगा, किसी आर्टिस्ट के साथ तो कभी नहीं करेगा। वो जो कल्चर है वो भी Because बहुत you देर बाद finally आया है, have to बहुत come कम back लोगों के पास to है the वो culture। same people. And then, Yeah. then you talk like this, it makes no sense. Any- मतलब बात ही क्यों करोगे जो अगली रौनक बार? रौनक ने बोला ना, तो अभी मेरे साथ भी हुआ था एक फिल्म के लिए, मैंने एक बजट कोट किया, तो जो ईपी थे उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी उस फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने बनाया है, तो उसमें तो इतना था। मैंने बोला सर उस फिल्म को कितने साल हुए पता है आपको? अरे मैं तो आप बोलता हूँ, क्या मैं बात कर रहे हो और आप ऐसे क्यों अरे बोल रहे मैं हो? आपके बाद वाली फिल्म मुफ्त में करूँ यार, आपको क्या? हाँ बराबर है, हाँ, करेक्ट exactly. करेक्ट अरे आपको क्या फर्क पड़ता है यार, आपकी फिल्म का रेट ये है, पिछली मैंने इतने में की हो उतने में की हो, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। तो आई मीन बट ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल आई थिंक ऑफ द I think there's a scope of actor ही life improvement में that I से was का कोई talking आवे, about. This had to 100%. come out then. जब मैं पूछा कि scope of improvement क्या है, तब everybody was very positive. This is No, where sir, we तो need. budget No, was but I think we never thought about this. इसलिए पता नहीं था कि आंसर ये है उसका। આમાં સિક્કાની બે બાજુ જેવું છે हाँ मतलब सी मैं हम ये नहीं बोल रहे कि उनकी मजबूरी नहीं होती, હા होती होगी, એટલા માટે પોઈન્ટ ત્યારે ना आयो बट दीज आर वन ऑफ केसेस। ये वन ऑफ केसेस, ये ऐसा नहीं कि हर इट्स देयर एवरीवेयर। कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पे मैं मांगता हूँ उससे ज्यादा भी मिला है मुझे। करेक्ट। I ऐसा think भी this नहीं है कि comes ऐसा out of नहीं the हुआ। frustration कि तुम बात ठीक से कर लो, पैसे मत तो चलेगा, लेकिन बात तो ठीक से कर लो यार। तो किससे बात कर रहे हो? क्योंकि एक्टर से तो ज्यादा मिले कम मिले उससे भी ज्यादा तब मजा आता है कि जब वो प्रोडक्शन में ही जाए, जब वो फिल्म पे दिखे, तब ऐसा नहीं होता कि यार ये सब कट डाउन करवा के बोल बोल के ये फिर कहाँ ले गया इतने पैसे। तो वो जब दिखता है ना ओवरऑल प्रोजेक्ट में, तो हम सभी को एक्चुअली तब हम सभी को वो सेटिस्फेक्शन होता है कि भले ठीक है जितने भी पैसे आए पर यहाँ पे दिख रहा है वो ज्यादा अच्छा है, पैसे बन जाएंगे आगे जाके। यानी आप पैसे कम दो और फिल्म गंदी बनाओ वो नहीं चलेगा। कम दे रहे हो तो फिल्म में दिखना चाहिए कि हाँ यार प्रॉपर खर्चा हुआ है फिल्म। पर ज्यादा दे के भी गंदी मत बनाओ। अरे उसमें ऐसा तो है कि कुछ तो मिला। दो रीजन से काम करता है एक्टर, या तो पैसे मिलेंगे या तो उसको जो सक्सेस, उसको काम में मजा है वो काम मिलेगा। अब दोनों में से एक तो चाहिए बस। ये दोनों मिले तो बहुत अच्छी बात है। दोनों मिले तो बहुत अच्छी बात है। बट हाउ डू यू मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर्स लास्ट मोमेंट पे बहुत, जैसे प्रमोशंस का टाइम है, मार्केटिंग का टाइम है, तब दे दे टेक देयर दिस थिंग कि यार या तो ये करो या तो ये करो, या लास्ट मोमेंट पे दे चेंज वट एवर विच इज रिटन और ये वो, तब तुम लोगों का रिएक्शन क्या होता है? दैट हाउ आर यू गोइंग टू? नहीं आई थिंक नहीं प्रमोट, आई टेल यू, वो बजट्स की आप बात कर रहे हो ना कि दे चेंज देयर माइंड। दे चेंज देयर माइंड एट द उसमें लास्ट क्या कि होता इतना है? मार्केट नहीं करना। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो गुजराती फिल्में बना रहे हैं ना, वो पहली बार बनाते हैं, दे आर इन्वेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उनको क्या है, जब फिल्म शूट हो रही है ना तब खर्चा दिखता है फिजिकली कि अच्छा लाइट्स आई हैं, एक्टर्स आए हैं, सेटअप हुआ है, लोकेशन है, तो ये पैसा खर्चा दिखता है। जब मार्केटिंग होता है ना तब उनको लगता है कि यार इतने का इतना पैसा, मतलब एक फिल्म में ट्रेलर डालना है अगर तो 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इतना पैसा लगेगा। ये वो इट्स नॉट सीरियसनेस समझने की। नहीं, सीरियसनेस से ज्यादा इट्स नॉट टेंजिबल। करेक्ट। आपको जो पैसा दे के मिल रहा है ना वो टेंजिबल नहीं है, वो आप देख फील नहीं कर सकते हो। और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। और फिर क्या होता है ना, जब तक फिल्म बनती है वो ये बाहर प्रोड्यूसर्स की भी ये गलती है, हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसा होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ यार इतने में हम फिल्म बना देंगे, फिर खत्म होते होते वो x into 0.5 हो जाता है। जस्ट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। हाँ कि भी प्रोजेक्ट शुरू कर दो, उसके बाद तो देना ही पड़ेगा ना पैसा खत्म करने के लिए। वो भी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, देन द प्रोड्यूसर्स में ट्रस्ट इश्यू हो जाते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं यार अब पैसा बचाओ। अब वो नहीं सोचते हैं कि यार फिल्म में पैसा लगा के उसको मार्केट करो, अब ऐसा लगता है कि कट योर लॉसेस। फिर बहुत सारी प्रोजेक्ट्स में, और ये मैंने बहुत देखा है, लाइक मेरे करियर में आई हैव सीन दिस अ लॉट, कि जब फिल्म बनती है तो इनफैक्ट एक फिल्म हमने की थी साथ में, जो बनते बनते 3-3.5 करोड़ तो सिर्फ प्रोडक्शन बजट हो गया। यानी फीस प्रमोट कैसे करेंगे? प्रमोट ही नहीं की, प्रमोट की ही नहीं। प्रोड्यूसर इज राइट, नो एज हिज पॉइंट ही इज राइट कि वो उसी ने पैसा डाला था भाई, उसको ही बड़ी पिक्चर बनानी थी। सो जब फिल्म शुरू हुई थी तब वो अच्छे ढंग से, अच्छे इंटेंशन से शुरू हुई थी, बड़ी फिल्म करेंगे और ठीक से प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन इतना बढ़ गया
तो फिर मतलब हमने वो 1 साल तक शूट की थी फिल्म। व्हाट वी शॉट फॉर 80 days in total। हाँ टोटल 80 days 80 days यानी टुकड़ों में, पहले तो 35 दिन तो एक साथ कर दिए, फिर 10 दिन का शेड्यूल आया, 12 दिन का, तो टोटल 80 दिन का कॉल शीट था हम दोनों का। पर वो मतलब शेड्यूल ही उस हिसाब से था कि नहीं नहीं, वो भाई, delay फिर होते होते। ये किया, फिर बोले ये नहीं मजा नहीं आ रहा है, अब ये ऐसा कर देंगे यानी वैसा कर देंगे। सेम सीन के बड़े बड़े 2 लोकेशंस, यहाँ पे एक लोकेशन में ये सीन शूट हुआ और आप देखो फिर उसके रशेस देखे गए और बोला गया ये सीन हम फिर से शूट करेंगे। हाँ, और 150 एक्स्ट्रा है उससे पीछे, बड़ा लोकेशन सेम सीन। पीछे 150 एक्स्ट्राज है, तामझाम है, अरे वो सब। लोग खाना खाने आते थे सेट। हाँ हमारे सेट पे लोग खाना खाने आते थे, ऐसा सेट मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। और जब मार्केटिंग की बारी आई तो हुआ ये कि फिल्म रिलीज हुई, 5वें दिन पे फिल्म उतर गई और 7वें दिन पे होर्डिंग्स लगे। हाँ मैं बड़ौदा पहुंचा एक वीक के बाद, होर्डिंग्स लगे, लेकिन थिएटर में फिल्म नहीं थी। गॉड यार गुरु थी। अरे बहुत मजा आ रहा था। नहीं, मजा नहीं आया। अब आ रहा है, बिल्कुल मजा अब आ रहा है। अब ऐसे सोच के हंस सकते थे, तब रो रहे थे हम लोग। Yes. Okay. This was very good. Quite some good insights, यार. नहीं, but also I want to know. मतलब बहुत लोग बोलते हैं I really don't want to get there, but then I want to know: is there a good brotherhood around, or is it more of jealousy here? It is great, honestly. Do you guys do you? I mean, this is the best thing about our industry. Really, like very frankly, I'm saying this that I told you today as well Yeah. that whenever we meet, it is not like the actors meeting. Yeah. We talk about everything but films. To be very honest, Oh, or if we talk about films, then we don't talk about our films. We talk about कि ये देखा, ये मस्त था, ये वो था। बाकी हम लोग वही कॉलेज के लॉन्डो की तरह मस्ती करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, या फिर अब जो थोड़े फ्रस्ट्रेशंस है वो बांट लेते हैं। बाकी आई मीन अगर मैं अहमदाबाद आया हूँ तो हम मिलेंगे, ये लोग बड़ौदा आएंगे तो मिलेंगे, मुंबई में भी ऐसा ही होगा कि क्या कर रहा है शाम को, चल लेट्स कैच अप। तो आई थिंक ब्रदरहुड तो फुल ऑन है, और सबके बीच में, टू बी वेरी एंड और हाँ एंड But do you guys discuss films that you were off at this, you were off at this, at what cost, or क्योंकि whatever? बहुत फनी है कि क्रॉस बहुत होती है फिल्म्स, बहुत होती है, होगी Yeah, exactly, that's होगी, why, because होगी। handful of people. So yes. नो आई हैव हैड केसेस वेयर प्रोड्यूसर्स ने और या जो भी मेरे से बात कर रहे हैं उन्होंने बोला है कि यार ये हमने इस एक्टर को अप्रोच किया था, बट उन्होंने बोला कि यार आप ये इसके पास लेके जाओ, ये ही इज बेटर सूटेड फॉर दिस रोल। सेम वेज इफ आई फील कि यार ये कैरेक्टर में मेरे को सेट नहीं हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके या इसको आप ट्राई कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो वैसा नहीं है कि यार ये फिल्म इसने कर ली, ये मुझे क्यों नहीं मिली, ये फिल्म इसने कर ली, मुझे क्यों नहीं शायद मिली। एक भी फिल्म में ऐसा नहीं होगा यार कि हाँ ऐसा होता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी थी, ये रोल बहुत अच्छा था, मुझे करना था, यानी आई वुड हैव लव्ड टू डू दैट रोल। हाँ, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार उसको ये मस्त फिल्म मिल गई, मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि वो थॉट ही नहीं। आप अगर प्रीमियर्स में आओगे तो सबसे ज्यादा चीयर एक्टर्स ही करते हैं Correct, वो तो of course. नहीं, पर वो फेक नहीं, आई मीन वो हाँ, सच में अंधेरे दिल में से दिखता ऐसा भी है नहीं है कि कौन कर रहा है। यानी भी कर रहा है। हाँ उसको दिखेगा नहीं, वो नीचे खड़ा है, मान लो कि यश का प्रीमियर है, मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, उसको तो उसको नहीं पता है, लेकिन उसको इतना पता होगा कि अपने में से ही कोई है। And I think we wish also each other with every project, like with Malar, Raunak, Yash. There is no jealousy. Otherwise, कौन क्यों फोन करेगा? और यार, हम क्यों सब ऐसा एक कर दूसरे रहे के हैं? लगाया तो trailers- बात कर भी लेते हैं, जैसे वी डिस्कस्ड अबाउट फिल्म, वी डिस्कस्ड अबाउट फिल्म्स, वी डिस्कस्ड ऑल फिल्म्स। वो हमारी फिल्म को तो बात करनी ही पड़ी, क्योंकि आगे जाके हम ही 6, 7, 10 लोग हैं जो ज्यादातर फिल्में करते हैं, ज्यादा फिल्में ऑफर आती है, तो एक बार वो डिस्कशन होना भी जरूरी है। और फोन करके बोल भी देते कि यार देख सच में 1-to-1 बात हो जाती कि देख इसमें मजा नहीं आया, हाँ, तू ध्यान obviously, रख, तू ध्यान रख, वो वाला फीलिंग भी है। ऐसा नहीं है कि किसी को पिन डाउन करने के लिए, लेकिन फोन करके बोल देंगे यार इसमें नहीं मजा आया, तू ध्यान रखा कर। तो और किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे क्यों ऐसा बोला, क्योंकि पता है कि यार क्या फर्क पड़ता है, वो क्यों उसकी 5 मिनट बिगाड़ेगा। नहीं, ये हुआ था, ये जो बोल रहा है ना अभी, द फिल्म दैट ही मेंशन्ड, उसके प्रीमियर में अब वही हुआ कि फिल्म देखी, इट वाज ओके, लाइक so I didn't feel like going, and you know I had to leave early also, and I didn't feel like going and saying कि यार ऐसे झूठ बोल के कि नहीं यार मजा आया। So he messaged me सामने से कि बोलना कि बकवास फिल्म थी, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला हाँ भाई ऐसा I understand, but ऐसा प्रीमियर के But he's very frank. He called me also few days back and said कि भाई ऐसा इसमें ये नहीं अच्छा था, तू ध्यान रखा कर। तो हम लोगों के बीच में ऐसा, और आई थिंक हम सब एक दूसरे के सारे ट्रेलर्स, टीजर्स, पोस्टर्स सब एक दूसरे के सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। यानी कभी ऐसा होता है कि 3 फिल्में दोस्तों की आ रही है तो मेरे सोशल मीडिया पे 3 उन्हीं की स्टोरीज दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। तो वो मुझे लग रहा है अगर वो ब्रदरहुड नहीं होता ना तो कोई किसी का शेयर नहीं करता। Yes, nice. Thank you for clarification, guys. ऐसा होता तो ये नहीं करते, ऐसा होता तो ये नहीं करते। अभी नीचे जाके हम डिस्कस करेंगे कैसा रहा शो। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे यार ये हम लोगों ने क्या किया। So then please do call, okay, do call.
नहीं वो तो ब्रदरहुड है ना, ब्रदरहुड है, तो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का प्रकाश You का guys ग्रुप नहीं है, बाकी ग्रुप में ही basically- है। Yeah, basically you guys. क्या are- पता इसके बाद you बन guys- भी जाए। हाँ, नहीं Yeah, एक तो I'm एक so बबाल glad नहीं that I है। become the main person because of who you make this group. Like, नहीं आप सुन नहीं पाओगे वहाँ पे। bro code. नहीं, I'm not saying that I have to know, but I just have to know whatever you guys feel about the show. अभी तक That's it. अच्छा बस, हाँ, बस. अभी तक अच्छा। हाँ यहाँ पे तो अच्छा ही बोलते हैं हम। These guys are mean, clear mean. Okay, I want to know one thing about stereotyping. Like बहुत सारी जगह पे जैसे आपने बताया, जैसे आपने लव स्टोरी की तो आपको लव स्टोरी ही ऑफर हुई, जैसे यू डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ रोल्स तो आपको वही दिया जा रहा है, तो आप इसको हैंडल कैसे करते हैं? एंड यू नो ऑल्सो इफ टू, जैसे हमने बात की, हमको हमारे एक्सपेंसेस भी देखने होते हैं, फिल्म्स ऑफर हुई हैं वो भी देखने, सो द होल प्रेशर कि एक तो स्टीरियोटाइप हो रहे हैं, प्लस काम करना है, प्लस ये काम नहीं करना, प्लस सब कुछ और देखना है, सो यू नो व्हाट इज द होल। वो टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चक्कर चल रहा है दिमाग में या कैसे चल रहा है, तो वो तो जैसे विकीशनु सीमंत मैंने किया तो इट वाज अ लॉकडाउन, अच्छी फिल्म आनी, पढ़ के अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा, तो आई थॉट कि यार ये फिल्म कर लेनी चाहिए, मज़ा आएगा, क्लियर जो भी है वो हिसाब सब क्लियर हो जाता है, तो वो मतलब एट द टाइम आई फेल्ट कि ये नया सब्जेक्ट लोगों को मज़ा आएगा तो कर लेना चाहिए। तो हर बार अलग विजन होता है एक्टर का, हर बार हर महीने हर दिन कोई ना कोई एक स्क्रिप्ट चूज़ करने के लिए एक वो थॉट रहता है, वो हर बार अलग रहता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सब्जेक्ट कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं पैसों के लिए कर लेते हैं, कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 महीना पहले ब्रेक लेके फिर करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि वो चूज़ कर लेता है एक्टर कभी भी उसको जो करना है वो, बट स्टीरियोटाइपिंग तो क्या है कि वो होगा ही होगा, वो कुछ नहीं कर पाता है। Because if the love story is a super hit, all the producers or maker will make a love story. अभी वही ना, छिल्लो दिवस के बाद कितनी छिल्लो दिवस Exactly. बहुत सारी कितनी बनी, मतलब 1.5 साल तक तो वही बना। ऑलमोस्ट बहुत सारे फिल्म्स तो सेम नाम के साथ टाइटल के साथ भी आने लग गए। अरे पहलो दिवस। बट आई थिंक स्टीरियोटाइपिंग का सबसे बड़ा लफड़ा है कि एज एन एक्टर आपको बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो सच में ऐसा हुआ था कि उसके बाद सारे कैरेक्टर्स लॉय के ही ऑफर हुए मुझे, सिर्फ नाम बदल गए, और वो नाम में भी उन लोगों ने कुछ क्रिएटिव नहीं किया, लॉय का चिंटू पिंटू मिंटू ऐसे थोड़े से यूनिक से नाम रख के, यानी वो पेट नेम्स होते हैं ऐसा रख के सारे ही, और फिर एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि आप कर लो ये, तो फिर आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू हिम कि यार मैं पक गया हूँ, मेरे को नहीं करना है ये, तो फिर हम लोगों ने अभी एक फिल्म की, उसमें भी हम लोगों ने वही मेक श्योर किया था, मैंने उससे बात की थी जब हम लोग साथ में कर रहे थे कि वो नहीं करेंगे जो कर रहे वो, तो उसमें से ब्रेक लेना ही पड़ता है हमें कि यार वो, वरना यानी 1-1.5 साल काम मत करो, इसीलिए अब जाके मैं अलग फिल्में कर पा रहा हूँ। मैंने 1.5 साल ब्रेक ले लिया था बीच में, और अभी जो नेक्स्ट फिल्म आएगी उसमें फाइनली मैं बहुत इतने 6-7 सालों के बाद कॉमेडी नहीं करूँगा। वाह। तो चले पोएट्री खत्म हो रहा है। इरशाद सर क्या बात, फाइनली कॉमेडी बंद करी आने। ફૂલ સ્ટોપ. સ્ટીરિયોટાઇપિંગ તો થાય ને યાર, થાય, મજા भी છે नहीं है। हाँ मजा भी आया, अमुक बार एमा बहुत मजा भी मतलब आपको भी वो फील आता ना कि हाँ यार मेरा काम इतना ज्यादा अप्रिशिएट हुआ, इतना ज्यादा लोगों ने प्यार दिया है कि दे वांट टू सी मी डू दिस मोर। हाँ बट ऑडियंस का ऐसा है कि उनको उसी में मजा ज्यादा आता है। अगर मैं कॉमेडी करूंगा तो मुझे ज्यादा ही रिस्पॉन्स मिलेगा, कुछ और करूंगा तो पता नहीं, वो तो है ही, लेकिन खुद के लिए भी तो कुछ अलग करना पड़ेगा। बट आई थिंक उसका सबसे इजी रास्ता है कि बोलो ना, हाँ सेम। वही ना बोलना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा ना कि आप बोल सकते हो और ऑनेस्टली प्रोड्यूसर्स को कि सर अभी मैंने ये किया है, अभी मुझे ये तुरंत नहीं करना है। अगर आप 1 साल वेट कर सकते हो, बीच में मैं 1-2 फिल्म अलग से कर लूं, उसके बाद થઈ જશે। Exactly. Apparently वो हो ही Exactly. वो you have to choose। लाइक ही इज नेवर डन द सेम कैरेक्टर ट्वाइस। इसने कभी नहीं किया, मैंने कभी सेम कैरेक्टर अलग दोबारा नहीं किया है। तो वो स्टीरियोटाइपिंग वाला खैर मेरे साथ बहुत कम हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे साथ इतना हुआ नहीं है कि लोगों ने एक इमेज में डाल दिया। मुझे नाड़ी दोष के बाद बहुत डर लगा था कि यार आप सब भाई बना देंगे मुझे, पर थैंकफुली वो हो नहीं रहा है। तो बट आई अंडरस्टैंड मित्रज दिस थिंग बिकॉज वी टॉक अ लॉट। हम लोग का ऐसा सहेलियों जैसा, हम लोग 1-1 घंटा बात करते हैं। 2 दिन में एक बार 1 घंटा फ्रस्ट्रेशन निकाल वही फिर से ऑफर। आई नो व्हाट ही वेंट थ्रू। आई पर्सनली नो के यू नो एज एन एक्टर मुझे भी ऐसा लगेगा यार कि एक ही चीज मैं 6 साल से किए जा रहा हूँ, मेरा भी एक बोर्डम आ और उसमें क्या तुम क्रिएटिव करोगे? अब नया क्या ही कर लोगे? हाँ, कैरेक्टर का ब्रीफ वही है कि दोस्त है, बहुत सही है, जुगाड़ करता है, कितना करोगे फिर? तो फिर छोड़ना पड़ा, ना बोलना पड़ा 1.5 साल तक, तो वही है। So but yeah, like as I said, the support is there.
Like if I feel stuck, I can call him anytime. I can call him anytime. Any of these guys. कि भाई ये चल रहा है, मेरे को मन हो रहा है कि मैं ये कर लेता हूँ यार, तेल लेने गया, अभी बहुत टाइम से काम नहीं किया, तो एक सैनिटी का वॉइस मिलता है सामने से कि वेट. इवन आवर डायरेक्टर्स लाइक केडी भाई, विजय गिरी बाबा, ये वो, दे आर ऑल वन फोन कॉल अवे. कि आप उनको फोन करो. मैं इनफैक्ट अभी आफ्टर नाड़ी दोष मेरे को जितना भी ऑफर हुआ है, मैंने हर चीज केडी भाई के साथ या विजय भाई के साथ डिस्कस की है, बिकॉज आई have a tuning with them also. They are like mentors to us actually. Yeah. If we are confused, stuck, we can tell them कि, और we can tell them कि हमें और कुछ कराओ आप, और कोई नहीं कर पाएगा. तो वो भी, और जो रौनक ने बोला कि सीधा पूछे कि सर ऐसा ऑफर है पर समझ नहीं आ रहा है, तो वो लोग बोलेंगे देखो, यानी एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा जो हमने नहीं सोचा होता है. मेरा भी एक्चुअली हर एक डिसीजन केडी भाई और वैशल भाई के साथ डिस्कस होने के बाद लिया गया हुआ है. तो ऐसा है एक्चुअली, जो ब्रदरहुड की भी बात की कि वो सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं है, वो भी उस तरह से उतने ही इन्वॉल्व है हमारे में भी, हमारे साथ भी. कई बार मतलब हर एक का ऐसा है, जहाँ जिसकी भी ज़रूरत है ना, वो हमेशा हाजिर रहा है. मेरे लिए तो पर्सनली, इन सब में से भी, इवन इंडस्ट्री में से भी, तो वो चीज़ हमेशा रही है. और एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आपको अलग काम करना है तो कहीं जाके काम मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Not at all. कि मुझे, so I'll tell you what happened. I was stuck doing the same kind of films till about 2017-18. तब तक वही चल रहा था, like you know, mid budgets, थोड़ी बॉलीवुड एपिंग टाइप स्क्रिप्ट्स, थोड़ा ये वो, जो रीजनल में काम नहीं कर रहा था. फिर I just like him, I had also taken a year's break कि भाई इसमें से कुछ करके निकलना पड़ेगा, बिकॉज एक छप जाता है ना इमेज इंडस्ट्री में कि यार ये ऐसा ही काम कर रहा है, तो इसमें नहीं होगा. तो आई वेंट टू केडी भाई, आई मेट हिम, आई सेड कि सर मुझे आपके साथ काम करना है. सो ही ऑफर्ड मी अ प्रोजेक्ट विच आई वाज लाइक शिट, मेरे को ये नहीं करना है. तो मैं बाहर गया, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है जय भट्ट करके, उनको मैंने फ़ोन किया, मैं भाई ये हुआ है, मैं काम मांगने आया हूँ, उन्होंने दिया भी है पर अब मुझे वो नहीं करना है, तो क्या करूँ. तो मुझे बोल दो ना कि ये नहीं करना है. तो मैंने बोला, एंड आई वाज वेरी प्रिपेयर्ड कि यार अब नहीं आएगा मुझे फ़ोन यहाँ से. तो ऑब्वियस सी बात है ना, कभी किसी को भी हर्ट हो सकता है. बट 3 days लेटर ही सेड कि यार थोड़ा प्लान चेंज हुआ है, हम कुछ और पहले प्लान कर रहे हैं, इसमें एक कैरेक्टर है, वुड यू लाइक टू कम इन हियर इट आउट. आई सेड ऑफ कोर्स, एंड दैट बिकेम नाड़ी दोष. राइट. सो अगर मैं नहीं गया होता उनके पास सामने से, तो मैं शायद नाड़ी दोष नहीं कर पाता. तो मुझे ये भी एक एक्सपीरियंस है कि कुछ अलग आपको करना है तो आप जाओ, ढूंढो, मिलो, बात करो, काम मांगो, कोई इशू नहीं. आई थिंक दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, बट आई एम श्योर लॉट ऑफ अस डोंट डू इट. शायद नहीं किया, कर पाए. नहीं, सी मुझे जेन्युइनली जरूरत पड़ी, नहीं वो करने की मुझे जरूरत पड़ी. आई वॉज नॉट गेटिंग इनफ ऑफर्स फॉर मी टू चूज गुड वर्क फ्रॉम. यू नो, एक ऐसा भी होता है ना कि मुझे 3 स्क्रिप्ट ही मिल रही है एक साल में, उसमें से मुझे एक करनी ही पड़ेगी. अब वो तीनों ही एवरेज है, इतनी अच्छी नहीं है, तो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ अ चॉइस. अब मुझे अगर चॉइस चाहिए, मुझे जो करना है उसकी, तो मुझे जाके मांगनी भी पड़ेगी. फॉर्चुनेटली इन लोगों को वो नहीं करना पड़ा है, विच इज़ वेरी गुड. आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस स्पेस टू बी इन, बिकॉज देव ऑलरेडी ऑलवेज हैड ऑफर्स वेयर दे हैड टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ से 10-15 स्क्रिप्ट्स, विच इज़ अ गुड स्पेस. एवरी एक्टर वॉन्ट्स टू बी इन दैट स्पेस कि भाई मुझे इतना काम मिलना चाहिए, इसमें से मैं बेस्ट चूज करूँ. सिलेक्शन होना जरूरी है. तो दैट इज अ जर्नी. नाउ दैट माइट बी अ शॉर्ट जर्नी, दैट माइट बी अ लॉन्ग जर्नी, बट इट्स डेफिनेटली अ वर्थवाइल जर्नी ईदर वे. सो वो एक चीज भी है कि आप, फॉर एनीवन हु स्टार्टिंग आउट आल्सो, गोइंग एंड आस्किंग फॉर वर्क इज नेवर अ बैड थिंग. मीना गुप्ता ने मांगा यार. हाँ, सब ट्वीटेड अबाउट इट कि मैं अमिताभ बच्चन है, he had to talk to people when he was in a bad situation and people helped him get out of it. Then anyone can do it. I don't think किसी को भी उतना ईगो होना चाहिए कि मैं काम नहीं मांगता. There is nothing wrong in it. Yeah. Nothing wrong. Absolutely nothing. You're only wanting to work. हाँ, exactly. It's that simple. Okay, last 3 questions. One, I want to know more about the fans. हम लोगों ने ये बात की insider. So when we go all out, हम लोग स्क्रीन पे हैं, किस तरह का प्यार मिलता है, एंड यू नो किस तरह का मैडनेस होता है फैंस का. यू गाइज विल बी एबल टू टेल मी दिस बेटर कि फैंस क्या क्या पागलपंती कर रहे हैं आप लोगों के टच में आने के लिए, आपके अटेंशन के लिए, बीट सोशल मीडिया, बीट इन पर्सन, व्हेनेवर आप प्रमोशंस करने जाते हैं, या कभी प्रीमियर्स को गेट क्रैश किया है, या कुछ किया है, समथिंग, सम इंसिडेंट्स इफ यू गाइज हैव. એટલે બહુ બધી વાતો એવી છે કે ફેન્સની કે यू डोंट नो क्या रिएक्ट करने वाला है. इतने सारे लोग हैं, उसमें से कोई स्केच बना के आएगा, कोई पेंटिंग बना के आएगा, कोई टी शर्ट पे ऑटोग्राफ लेगा,
हमको सिर्फ हाँ बोलना होता है और कुछ नहीं करते हम। और वी एन्जॉय दिस प्रोसेस कि भाई लोग मिलने आते हैं, लोग फिल्म के बात करते हैं, हम डांस कर रहे हैं तो वो भी साथ में डांस कर रहे हैं। सो पागलपंती तो ऑफकोर्स वो जो फैन एकदम नज़दीक आ जाते हैं, ये वो सारी चीज़ें तो अभी नॉर्मल हो चुकी है हमारे लिए, क्योंकि अभी वो तो होना ही है कि तुम अगर प्रमोट करने जाओ, एक हीरो हीरोइन 2 ही लोग हैं और तुम फिल्म की बात कर रहे हो, तो कोई ऐसा बीच में से ऐसा आई लव यू ऐसा करके चिल्लाएगा, तुमको आई लव यू टू बोलना ही है, सब सब क्लियर फंडा है। तो ये जो सारी प्रोसेस है फैंस की, उसमें जब राजकोट जाते हैं, जामनगर जाते हैं, वो फैंस एक्चुअली घर पे बुलाते हैं, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम जाना भी है और नहीं भी जा सकते। तो कोઈ આएगा कि यार चलो તમે હમણાં ને હમણાં ભાઈ ઘરે જવાનું છે મારે, હમણાં જ હમણાં એવું બધું કે યાર હમણાં તો ખાવાનું બી નહીં આપે, હમણાં તું 5 ફીટ આપ, જરા આપણે બધું કરીએ આમ તેમ। પણ રાજકોટની એક પેટર્ન છે કે તમને લોકો સ્વીકારે, ઘરે લઈ જાય। જામનગરની એક એવી પેટર્ન છે, બરોડાનું ફેન ક્લબ આખું અલગ છે, એટલે બધું બહુ આમ સ્કેટર્ડ છે બધું, જાતભાતના લોકો, જાતભાતના, એટલે આખા ગુજરાતને અમે મળીએ છીએ। એક સમય એવો હોય છે પ્રમોશનનો કે જ્યારે આખું ગુજરાત મળીએ છીએ અમે, અને એમાં અમને જાતભાતના કેરેક્ટર્સ બી મળે છે, જાતભાતના લોકો બી મળે છે, અને અમે બધું દિલથી સ્વીકારીએ છીએ અને અમને બહુ જ ગમે છે। એટલે એમાં કશું એમાં પેલું છે નહીં કે આમ નડી જઈએ, પણ ગમે જ છે એમાં આવું બધું એમ। કોઈ ફેન આપણા માટે રડે તો આપણને એમ થાય કે રડે નહીં એમ, પણ એ વખતે એવું થાય છે હા કે યાર બિચારા કેટલો પ્રેમ કરે છે એમ। અને એવરી डे इट ग्रोज है ना, लोग मतलब जितनी बार जाता है इतनी बार, मतलब पारुल यूनिवर्सिटी के मैं अभी कम से कम 10 बार 8 बार तो गया ही हूँगा, अभी और 1 साल जाऊँगा, तो इट ग्रोज। बच्चे मल्हार के सामने बड़े हो जाते हैं। 3 साल निकल जाते हैं, वो हर साल जाता है। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में निकले कि नहीं निकले, क्योंकि उधर ही कुछ पढ़े। तो जानते ही होंगे। लेकिन हमारे लोग रिस्पेक्टफुल तो बहुत बहुत है, बहुत। नहीं, कोई ऐसा बदतमीजी नहीं करता हाँ, है that's कभी exactly what I नहीं। was asking कि there are no incidents of misbehaving that you know किसी पे कुछ फेंका, किसी पे कुछ नहीं, किया फेंका है। फेंका तो कभी, फेंका तो क्या फेंका, टी शर्ट फेंकी होगी कि साइन कर दो, यानी आई विल टेल यू दिस, अभी मुझे ये गिफ्ट मिला छोटा सा, तो हम लोग अभी अफ्रीका गए थे, हमारी फिल्म का वहाँ पे स्क्रीनिंग था, तो 2 छोटे बच्चे आए थे, उन्होंने हाथ से बनाया है। Okay. तो ऐसे छोटे मोटे जेस्चर्स इतना टच कर जाते हैं, और वो देते टाइम उनकी आंखों में आंसू थे। तो यानी मैंने बोला नहीं गिफ्ट नहीं लेता हूँ मैं, तो उन्होंने बोला मैंने हाथ से बनाया है, और दोनों व्हीलचेयर पे थे, छोटे बच्चे थे, तो और फिर उन्होंने बोला कि आपको नज़र ना लगे किसी की। तो आई मीन दीज आर द मोमेंट्स, वो हम पूरी ज़िंदगी अपने दिल में बसा के रखेंगे। तो वही होता है वो, यानी कुछ साल में एक बार प्रमोशन में गए हो, कुछ ऐसा हो जाता है। पर जैसे रौनक ने बोला, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने गाली बोल दी हो, हाँ, मतलब कुछ या extreme किसी ने नहीं मिसबिहेव किया हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभी लोग थोड़े ओवर फेमिलियर हो जाते हैं। हाँ, वो ऐसे गले में हाथ डाल के, हाँ, वो ऐसे जैसे हम बहुत बचपन के दोस्त थे, ऐसे आके एकदम अरे केम छो मजा, तो वो थोड़ा इतना भी चलता है जब ऐसे मुंडी हाँ, ऐसे वो हुआ है, selfie लेते हैं। Yeah, I have seen in the pictures videos a lot of times you like ऐसा डाल के, taking a- बट एट द एंड ऑफ द डे वो प्यार ही है यार, वो ऐसा नहीं, उनको ऐसा नहीं कि यार इनके साथ देखो यार, अब मैं मल्हार मेरा दोस्त है, वो थोड़ा शो ऑफ कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ। ये इट ऑल कम्स आउट ऑफ अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग, इट ऑल कम्स आउट ऑफ लव। हाँ, वो ऐसा बोले भाई फोटो तो पड़ाओ पड़े ना, ऐसा करके। हाँ, और उनके बिना हम क्या ही कर लेंगे, वही वो पर नहीं वो अभी होंगे। भी उतना ही ओवरवेलमिंग है एक्चुअली, जितना 2015 में छेलो दिवस के बाद मिला। तो अभी भी जैसे कि मैं अभी बड़ौदा गया था, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और वहाँ पे कुछ 45 to 47,000 लोग थे बड़ौदा के गरबा में। तो वो जब मैं स्टेज पे गया और एक साथ एक्चुअली उन्होंने सबने नाम चिल्लाया और वो चीयर कर रहे थे, तो ये ऐसा नज़ारा देख के लिटरली मतलब मेरी आंखें गीली हो गई थी, और मैं कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लिटरली। तो अभी भी उतनी ही ओवरवेलमिंग वाइब है कि यार ये क्या एक्चुअली हमने पा लिया है, जो हम जिसके पीछे हम कभी भागे भी नहीं है। ये क्या ऐसा तो क्या मिल गया है हमें, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। कभी कभी ऐसा हो जाता है एक्चुअली कि कुछ बहुत 1-2 लोग होते हैं जो जिनके ईगो पे आ जाती है बात, कि जब मैं एक्चुअली फिल्म के लुक में होता हूँ तो मैं वो रिवील नहीं कर सकता। वो सबके साथ होता है कि कोई अगर डिफरेंट लुक, जैसे कि मुझे अब तक लोगों ने दाढ़ी में देखा हुआ है और दाढ़ी के अलावा मैं कोई लुक में हूँ, तो वो प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि वो हमारी फिल्म के थ्रू आए और वो हमारे पोस्टर्स के थ्रू वो लुक आए, ताकि एक अलग हाइप मिले, या कुछ भी जो भी उनके मैथ्स हो। मुझे ज़्यादा पता नहीं चलता उस मैथ्स के बारे में। तो उन्होंने मुझे मना किया है कि मत रिवील करो, तो मैं नहीं करता हूँ, बस एज सिंपल एज दैट। तो उस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से मना करता हूँ कि मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, बट नाइस टू मीट यू, ये वो। तब ईगो पे बात आ जाती है कि फोटो कैसे, हाँ कैसे मना कर सकते हो। ऐसे बहुत कम लोग हैं पर है। तो
वो भी है। फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें पता भी नहीं होता, और जैसे कि हम सूरत में प्रमोशन करने गया था मैं राडो के लिए, तो तब ऐसा हुआ हमारे साथ पर्सनल बाउंसर की एक टीम थी जो पूरे प्रमोशन में घूम रही थी। अब उसका कुछ गाड़ी का लफड़ा हो गया और वो लोग नहीं पहुंच पाए, तो तब वहाँ पे कोई लोकल बाउंसर्स उन्होंने अरेंज किए हुए थे। तो उन लोगों ने मतलब मैं भी नहीं चाहता हूँ कभी ऐसा हो, तो वो लोग जब ऑफकोर्स लोग आएंगे, जैसे मल्हार ने बोला कि 2 ही लोग हैं तो भीड़ एकदम आएगी। अभी हमारे जो पर्सनल बाउंसर्स हैं वो हमेशा हमारे लिए उसके लिए साथ में है, क्योंकि उनको पता है किस तरह से हैंडल करना है, और कुछ जबरदस्ती या कुछ अलग धक्का ना नहीं हो मारना जाए। है किसी हाँ, को बेसिकली। अब वो लोग मेरे आंखों के सामने गले से पकड़ पकड़ के फेंक रहे हैं लोगों को नीचे। मैं डर गया कि भाई तू क्या कर रहा है, तो मैं जाके रोक रहा हूँ। मैं लोगों से मिलने से ज्यादा उसे संभाल रहा हूँ कि भाई मत कर, ऐसा मत कर अभी। पर वहां से निकलते वक्त मुझे गालियां पड़ रही है कि फरीवार आओ तो नहीं यहाँ हमने तेमने, तो वो चीज एक्चुअली हमारी नहीं है, गलती नहीं है। वो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये बाउंसर यहाँ पे होगा, मुझे तो पता भी नहीं था बाउंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं लोकल वाले। तो वो सबके साथ एक्चुअली हुआ होगा, किसी ये चीज़ तो मेरे सामने आई। कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता भी नहीं होता कि मेरी टीम की वजह से कुछ हो गया हर्ट, और वो मुझसे नाराज है, तो वो चीज़ें भी है। बीइंग फेसेस उसका प्रो एंड कॉन है। हाँ, और दूसरी एक बात आई थिंक मैं सबके बिहाफ पे बोलूंगा, अगर किसी को भी ऐसा लगे कि ये वो एक्टर है जिसको मैंने देखा है, तो उसका दूर से वीडियो या फोटो या उंगली वो मत कर, आके मिल लो यार। हम लोगों को भी अच्छा लगता है अगर कोई आके अप्रिशिएट करता है कि यार आप वही हो, पूछ लो या मिल लो। लोग कभी कभार छुप के, यानी मम्मी पापा के साथ शॉपिंग कर रहे हैं तो दूर से जूम करते हैं और दिखता है क्योंकि वो मुंह पे जूम करते हैं, तो उससे अच्छा आओ हम भी शांति से फोटो खिंचाएंगे, मेरे मॉम डैड आपका फोटो खींच के देंगे, हम सबके पेरेंट्स ऐसे ही हैं। मुझे तो बहुत मजा आता है यार उसमें एक्चुअली, दूर से कोई ऐसा हो ना कि ऐसा तो मुझे बहुत, तो मैं तो बुला लेता हूँ ऊंच 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 कि आप वो हो, तुम्हें तो नहीं, वो नहीं, मैं नहीं, दूसरा वाला। मुझे भी, मैंने तो हाँ भी बोल दिया है, हाँ मल्हार मल्हार के नाम पे तो बहुत लोगों ने फोटो खींचा है, क्योंकि आधे लोग तो मल्हार ही बुलाते हैं, अब मल्हार एक्टर ऐसा ही हो गया, मल्हार जिंदाबाद। Okay, one last question. I had 2 questions Great, which yeah, were great. Can I? One last question. Ask Malhar. No, I will ask everyone. Everyone, This yeah. is about pressure of content creation on social media in general. Not everybody would dance, I am sure. But is there any kind of pressure कि Facebook पे या Instagram पे ये डालना है फैंस के लिए या ऐसा वैसा कुछ? किसी को भी, किसी को Zero, I don't think Zero. so. किसी ने कोई- नहीं मतलब प्रमोशन के टाइम पे आता होगा ना कि ये करना है, वो करना पड़ेगा, ये नहीं करना नहीं, आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट रील्स एंड स्टफ। इन जनरल सी इन जनरल ક્રિએટ કરવામાં ડિફિકલ્ટીઝ તો આવે છે ને, કેટલું લોડ લેવો પડે છે. કોન્ટેન્ટ ક્રિએટ કરવાની ડિફિકલ્ટીઝ આવે છે, પરંતુ પ્રેશર નથી લેતા કે કરવું પડશે। Yes. No, beat brand collaboration. ब्रांड कोलैबोरेशन प्रेशर है, लेकिन वो पैसा अच्छा है, पर वो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, वो कर लेते हैं हम लोग। वो 2-3 घंटा दे देते हैं फिर ब्रांड कोलैबोरेशन पूरी अलग चीज है। पर्सनल प्रोफाइल को ऊपर ले जाने के लिए जो होता है वो पूरी अलग चीज है। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए I मेहनत want नहीं the कर। both. I want to know about the both. Like, सी ब्रांड क्या कोलैबोरेशन मेहनत में, चल रही है? ब्रांड कोलैबोरेशन में क्या है, पैसा आता है, उनको बोलना है भाई इंस्टाग्राम पे ये करना है, वो करना है, हाँ भाई લઈ લો, ચલો બધું પતી ગયું, વાઇન્ડ અપ, પૈસા આવ્યા, બેંકમાં ગયા, ખતમ। જે બીજો જે પ્રેશર છે ને કે જાતે આપણે આમ ચાલતા હોઈએ એનો બી વિડીયો આવે, પછી હા જમવાનું બનાવીએ એનો બી વિડીયો આવે, ટુડે ઇઝ ડુઈંગ ધીસ, ટુડે કશું નહીં, કોઈ લેવા દેવા નથી દુનિયા સાથે। એટલે આમ આપણે શું કરીએ છીએ અમુક તો પર્સનલ હોય ને, એટલે એવી ફીલ આવે કે યાર, અને હવે તો પેલું ફિલ્મવાળું બી એવું થઈ ગયું છે કે હવે કરીએ છે તો રોજ આપણે દુકાન ખોલી હોય તો રોજ તો દુકાનનો ફોટો ના મૂકીએ ને યાર કે આજે આ દુકાનમાં હું છું, આજે આ દુકાનમાં છું, એટલે રોજ છૂટી ગયા જ કરો। नहीं there are see, कुछ लोग हैं जो you know they are inclined towards Correct. social Yes, media yes. कि उनको मजा भी Keeping आता है। their fans engaged. बट कि आई ये वॉन्ट चल टू रहा है, लर्न ये दैट चल रहा है। इन्फ्लुएंसर थिंग, क्योंकि यार वो एक છે You are the biggest chase वाले। influencer right now in Gujarat. એવું નહીં, કન્ટેન્ટ જે બનાવે છે ને લોકો, જે રીતે વિશાલ, આઈ લવ વિશાલ રિયોપી, મનન, ઇવન પાર્થ પરમાર, અમદાવાદી મેન, આ લોકોને કોન્ટેન્ટ, દે રિયલી મેક કોન્ટેન્ટ, દે રિયલી शूट કોન્ટેન્ટ, दे पोस्ट, दे एंजॉय दिस प्रोसेस। वो वाला सलाह आता नहीं है, पैशन है यार, हाँ एक्चुअली उनका पैशन है, उनको मजा आता है। बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं, यानी विशाल और ये जितने भी अमदावादी मैन और वो एक પેલું પરપોટો, એ લોકો કેવું છે ખબર છે કે એ લોકો રોજ આ કરે છે, રોજ સ્ક્રિપ્ટિંગ પર મહેનત કરતા હા, હશે, actually, એવરી મોર્નિંગ દે ગો આઉટ, દે શૂટ સમથિંગ, અને એ લોકોને એમનું ઓડિયન્સ બહુ સારી રીતે ખબર છે। Correct. અને મને એવું લાગે છે એઝ એન એક્ટર આઈ ડોન્ટ વોન્ટ માય પ્રોફાઇલ ટુ લુક લાઈક અ કન્ટેન્ટ ક્રિએટર ઓલ્સો। એ મારી તો ચોઇસ બી છે કે હું એક ધારો કે ફેશન બ્લોગર નથી, કે હું કોમેડી વિડીયોઝ નથી બનાવતો, હું એક્ટર છું, મારી પ્રોફાઇલ એક્ટરની છે।
ઓનેસ્ટલી કોઈ પણ કોન્ટેન્ટ ક્રિએટરની એંગેજમેન્ટ एक्टर्स करता વધારે જવાની છે ક્યારે પણ बिकॉज वो रोज क्योंकि उनका कंसिस्टेंसी है और उनके बहुत डेडिकेटेड फॉलोवर्स है जो उन पे रोज कमेंट करना उनको ऐसा लगता है कि ये तो मैं करूंगा विशाल ने कुछ डाला तो उस पर मुझे तो कमेंट करना है मेरा पहला कमेंट है हमारे अलग है जब फिल्म का पोस्टर आता है तब जो एंगेजमेंट आता है और एक रैंडम पिक्चर पे जो एंगेजमेंट आता है उसमें आसमान जमीन का फर्क है जैसे वो फोकस्ड इंडियन वाले लोग हैं बहुत मजा आता है कंटेंट देखने में मजा आता है उनके साथ शूट मतलब वही है ना कि सी एक कंटेंट का भी फॉर्मेट होता है ना दिस इज शॉर्ट 59 सेकंड 59 सेकंड्स 1.5 मिनट 2 मिनट जो भी आपका प्लेटफॉर्म आपको अलाउ करता है वो उसमें आप सीमित हो हम सब लॉन्ग फॉर्मेट वाले हैं ऑल्सो वी आर नॉट ऑल ऑफ अस आर राइटर्स like as good writers as probably we'll be actors. You know, I know for a fact that Malhar writes, I know that Mitra writes, but I don't write. And this content creation includes everything: writing, directing, editing, editing. Mitra knows editing also. Everything. hashtags, everything. So you should know it all. અમે લોકો એક હેમોરની એક વસ્તુ કરી હતી બધા ફોન કોલ લેતા મિત્ર હેઝ ડન એવરીથિંગ ઇન ઇટ ફ્રોમ સ્ક્રિપ્ટિંગ ટુ લાસ્ટ એડિટ तक Wow. पर था तो वो है but like वन टाइम जॉब ठीक है but that is very रोज personal नहीं हो पाएगा वो And that too because I think it was during COVID or something. इट वाज ड्यूरिंग तो- कोविड तो और कर हम दोस्तों पाए। का ही था वो सब कि मिल बांट के करते हैं कुछ ऐसा तो दैट्स ओके कभी एक बार कर लेकिन रोज एक वीडियो शूट करूँ राइटिंग करूँ एडिट करूँ तो फिर एक्टिंग पे का फोकस होगा ऐसा भी लगता है हम लोग ने किया था इनफैक्ट ही हैड अ चैनल कॉल्ड काफी रैंडम Correct. आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ चैनल कॉल्ड अनटिपिकल जिसके बहुत Correct. videos बनते थे सब। Correct. Correct. तो वो तब जब हो रहा था ना तब अगेन बट वी ट्रीटेड इट एज शॉर्ट फिल्म्स हम लोग ने कभी ये नहीं फोकस करके किया कि ये सोशल मीडिया के लिए हम बना या रहे हैं वायरल करने के लिए वायरल करने के लिए बना रहे हैं यू नो हम लोग ने हमेशा प्रोडक्ट पे ही फोकस किया है तो वो दैट्स आवर बट ट्रेनिंग दैट इज आवर स्कूलिंग बेसिकली That's our और schooling. वो कंटेंट क्रिएशन का पूरा स्कूलिंग अलग है वो समझ नहीं आता है मुझे मैं जब कंटेंट क्रिएटर से बात करता हूँ ना तो वो लोग बहुत क्विक है वो लोग सच में बहुत और रिहर्सल में हमला रिहर्सल એકવાર કયો રિહર્સલ અમે અહીંયા ઉભા રહેવાનું સામે જોવાનું અને આમ કરવાનું થઈ જશે હું છું ને पर उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत सही है बहुत सही होता है They know their work basically and they work really कंटेंट hard. क्रिएटर और हमारा वो अभी वही चल रहा है एक्टिंग और वही हमको नहीं आता है साइड में भी एक्टिंग करते हैं यार हम। लाइक मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं मतलब जब હવે થઈ જાઓ યાર હવે થઈ नहीं जब काम चल रहा होता है जब काम चल रहा होता है तो जो मुझे कंटेंट मिलता है वो मैं अपलोड करता हूँ मैं ज्यादा इतना बिकॉज इट्स नॉट माय थिंग થોડું ખાઈ લો ભાઈ મામા હવે યાર time આવી એક ગયો, લાડુ હવે ખાઈ આવી લો જાઓ ભાઈ યાર. આપણે આપણે આજે આપણે કઈ પ્લાન કરીએ કે વી ચલો કે વી ક્રિએટ સમ ફોટો મૂકી દઈશું આપણે રીલ વીલ નહીં આવે. આપણે કઈ બનાવીએ આ કંઈક બનાવીએ. જ્યારે પણ એક પ્લાન કરીને મસ્ત આમ હાફ એન 2 hours કરી અને વીલ ડુ ચલો આજે થેન્ક્સ ટુ યુ थैंक्स टू यू थैंक्स आफ्टर लास्ट क्वेश्चंस बहुत मजा आया Thank you so much. guys. wrap up last question was amazing oh my god લાસ્ટ ક્વેશ્ચન Thank you guys for everything. Thank you for your time. Thank you for everything, for talking to me here, for actually, what do you say? What is that word? Thank you for having us. No. Arey, table talk. One second. Thank you for confiding in me. Thank you for talking so much. Shashi Tharoor I know where this is coming from. It was really glad to have you all. Thank you so much for your time. But this is probably the first round table conversation. So all thanks to you. Thank you. We feel like we are with Rajiv Masal. Anupama Chopra. अनुपमा चोपड़ा भी है बट यू चोज राजीव मसल Deepali wear chashma तो राजीव मसल exact. we are giving you proof for आ रहे The हैं writer. बहना नहीं रिफ्लेक्शन बात बन रही रिफ्लेक्शन बहुत सारे But it is that great is what I'm trying to tell you. बहुत मजा आया बहुत मजा आया. Thank you. मैं बाद में सुनना चाहूंगी. Once you guys discuss it after that. yeah so Yeah. यार मुझे तो आई एम तो वेटिंग लाइक नाड़ी दोष में जो हुआ लाइक हम साथ में थे लाइक वी वर नेसेसरीली पिटेड अगेंस्ट ईच अदर बट द रिलेशनशिप वाज अप्रिशिएटेड सो मच कि लोगों ने बहुत मेरे को अभी भी फीडबैक आता है कि यार जीजे साले की ये रिलेशनशिप तो हमने कभी नहीं देखी है It's new also. आई एम वेटिंग कि कब मुझे मलार के साथ फिल्म हो मित्र के साथ तो मैंने काम किया भी है एंड आई नो दैट वी शेयर अ ग्रेट केमिस्ट्री बट तत्सत के साथ आई हैव वर्कड Malhar and we haven't, but I'm looking forward for a script where if we get a chance to do that, it'll be great. Why not? And I feel artistically collaboration is the only way to grow. अगर मैं सेम लोगों के साथ सेम चीज करता रहूंगा तो मेरा ग्रोथ नहीं होगा एज एन आर्टिस्ट. इफ आई कोलैबोरेट विद डिफरेंट पीपल, it helps me, helps others.
But I think we are very hopeful कि Yeah, I really want to do a film with you, man. Like, But I think પાર્થ જે પૂછે છે ને કે અગેન્સ્ટ ઈચ અધર લાઈક વિક્રમ પણ વેડા એનાથી ફરક પડે છે હું એમ કહું છું. હા એટલે એકચ્યુઅલી મને તો એવું છે કે ક્યારેક એવું થાય હા કારણ કે આ જે કેમિસ્ટ્રી છે ને લાઈક વેન આઈ વોઝ ડુઈંગ રાડો તો જ્યારે માધવી સાથેના જે પણ કોઈ સિક્વન્સીસ હતા ને તો હું બહુ કોન્શિયસ હતો કે આ ના થઈ જાય તો આફ્ટર એવરી ટેક આઈ યુઝ ટુ સે સોરી યાર થોડું આ તે હવે જે જોર લગાવવું પડશે તો લગાવવું જ પડશે આ તે બટ એની સામે અગર મલ્હાર છે રોનક છે કે મિત્ર છે આ તે તો એ લોકોનો એમને જ્યારે અમે ભાઈબંધીવાળી ફિલ્મમાં પણ એવો સપોર્ટ હોય છે કે તું માર એમ ધારો કે મલ્હારે શું થયુંમાં મારવાનું હતું તો તું આવા દે આ તે ત્યાં બધું એટલું એ કમ્ફર્ટ છે કે હું કદાચ આની સામે એ પ્રકારનું ફિઝિકલ એક્શન્સ પણ કરીશ તો પણ એ મને ખબર છે કે હું હા એટલે એકવાર લાફો પડી ગયો તો બી આપણને ખબર હશે કે હવે પેલી કોન્શિયસનેસ નથી કે સામેવાળો માણસ રિએક્ટ શું કરશે કદાચ સેટ પરથી જતો રહે અથવા તો ઈગો પર વાત આવી જાય જે હા થઈ શકે It's a good give and take. હા એક્ઝેક્ટલી સિનિયર એક્ટર જોડે કામ નથી કર્યું ને હજી એક્સેપ્ટ વન ફિલ્મ મેં બહુ કર્યું છે એટલે એમને તરત લાગી જાય કે આ ટી શર્ટ થોડું ભાઈ બરાબર પકડ અરે ટી શર્ટ પકડવામાં બી હવે ટાસ્ક થઈ જાય તો કેવી રીતે વિચાર્યું હોય તો પછી હું ડિરેક્ટરને કન્વિન્સ કરતો હતો કે ટી શર્ટ ના પકડાવો તો સારું ખોટું આપણાથી થઈ જાય અને પછી બસ એટલે આમાં હોય છે આવું બધું but I don't think આપણા જનરેશનમાં એકબીજા સાથે I don't ના વી આર હેવિંગ ગ્રેટ ફન इनफैक्ट आई थिंक वी वुड रियली लाइक इट्स हैपेंड यार जैसे कोई सीन हो रहा है तो एक दूसरे को फीडबैक भी तभी दे देते क्या ये ऐसा ट्राई करना આને માર્યો તો हाँ मैंने इसको मारा था सेट चुप हो गया था 10 मिनट तक ખાલી મારવાની વાતો નહીં પણ એટલે genuine do rehearsals we genuinely do everything no and he told me to slap him because it was his close up he said मेरे को अब इतना क्योंकि हमने हम लोग 10-12 पूरी रात take- रो चुके थे 12 बजे सीन शुरू हुआ था लाइट आने वाली थी सुबह तो હવે આખી રાત રડી રડીને મગજ બી બંધ થઈ ગયું હતું મેં તો આ છેલ્લો ક્લોઝઅપ મારો છે તો તું આલી દે એક એટલે એ છેલ્લે लेकिन इसमें मेरे आंसू नहीं आएंगे ना तो बहुत खराब लगेगा અને और भाई अब मेरे आंसू खत्म हो गए मेरे को नहीं आ रहे આખી तो રાત वो बोले मार दे तो मैंने बोला આણે બરા આણે એટલી જોરમાં મારી ને કે એટલે એને मैं तो कचकच मारी दीदी बनी માર દીધી મને છે ને સેટ પર સન્નાટો કે હવે થશે બબાલ हाँ उनको लगा कि हम झगड़ेंगे अब कि ये बिगड़ेगा फिर ક્યોંકि બધા ચૂપા બધો They અવાજ didn't આવતો know. હતો. પછી ક્લોઝઅપ પછી તું રોક ધીમે મારવાની થોડી વધારે પડતી જોરમાં મારે मैंने 5 बार बोला कि भाई मत कर ऐसा मत कर दोबारा शॉट लेने आएगा तो यहाँ छपे हुए होंगे वो मत वो लास्ट एक ही था એ તો. हाँ मतलब तो सुना नहीं यार मार दो ठीक પણ ભારતે કીધું એમાં એક વસ્તુ એવી બી છે કે અગેન્સ્ટ ઈચ અધર રોલ કરતા હોઈએ કે ફ્રેન્ડ્સ નો રોલ કરતા હોઈએ એનથી મને એવું નથી લાગતું કે ફરક પડશે. ऐसा अगेंस्ट नहीं વિક્રમ होता વેદા ना। જેવું હા हम એક્ઝેક્ટલી लोग काम तो एक ही चीज के लिए कर रहे हैं ना एंड में तो प्रोडक्ट ही दिखने we want वाला to be है hero villain in the same Yeah, film actually बट ऐसा होना चाहिए यार अब हो गया बहुत दोस्ती की फिल्में कर ली अब ये विक्रम वेदा जैसा कुछ होना चाहिए अब एक नेगेटिव I- करे I'd एक love to do positive। हो जाए तो अच्छा है लिख लो भाई बोलिए हाँ कोई जो सुन रहा है प्लीज कुछ नेगेटिव पिच कर दो All right, thank you so much. It was pleasure having you guys here. It was amazing as a conversation. I hope you guys liked it too. I just hope. I'm not going to love, but I'm going to like. So yes, thank you so very much. थैंक यू Hi, I'm Tathad Munshi. हेलो हाय नमस्कार दिस इज मित्र गढ़वी एंड Hi, my name is Ronak Kamdar and you are watching the DC show. you are watching the DC show હેલો આઈ એમ યશ સોની પ્લીઝ વોચ ધ ડીસી શો hi this is Malhar Thakur please watch नहीं सोचा DC show ना Please watch the DC show and like, share, and subscribe. So make sure you watch this episode and don't forget to like, share and subscribe. એન્ડ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ please watch DC show and watch this episode and like share and subscribe